Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 8.3 chapter 8 Introduction to Trigonometry class 10th NCERT mathematics. Before starting with this exercise, let's quickly revise within first 2 minutes all the concepts whatever we have discussed so far. The first is in a right angle triangle ABC, right angle at B, let us consider acute angle theta. हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में यही है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि अपने परपेंडिकुलर किसको लेना है और बेस किसको लेना है. इफ़ आई एम कंसिडरिंग दिस वन एक्यूट एंगल थीटा, देन द साइड ऑपोजिट टू दिस एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू दिस एक्यूट एंगल इज कॉल्ड बेस. With respect to angle theta, this is our perpendicular AB and CB is our base, right? We are having 6 trigonometric ratios. The abbreviation for sine is sin theta, cosine is cos, tangent is tan, cosecant is cosec, secant is sec and cotangent is cot. The ratio which is called sine is perpendicular upon hypotenuse, cos is base upon hypotenuse, tan is perpendicular upon base, cosec is hypotenuse upon perpendicular, sec is hypotenuse upon base and cot is base upon perpendicular. Sometimes we also use it like sine is opposite side upon hypotenuse, base is adjacent side upon hypotenuse, tan is opposite side upon adjacent side, cosec is hypotenuse upon opposite side, P stands for side which is opposite to the given angle and B stands for side is which is adjacent to the given angle. Then we are having few relationship between these trigonometric ratios. As you have to learn all these relations, because without learning these relations you people will not be able to solve exercise 8.3. क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है, आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है, आपको ये रिलेशंस अच्छे से पता होने चाहिए, क्लास 9th की कुछ आइडेंटिटीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. बाकी सब आप ऑन द स्पॉट आप क्वेश्चन देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से आगे करना है. इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है, हर क्वेश्चन अलग तरीके से होगा. जितना अच्छा होल्ड आपका इन रिलेशंस के ऊपर होगा आपको क्वेश्चन करने में उतनी ही आसानी होगी. साइन and cosecant, they both are reciprocal of each other. Their product is 1. Sine is equal to 1 upon cosec and cosec is equal to 1 upon sine. Similarly, cos and secant are reciprocal of each other. Their product is 1. Cos can be written as 1 upon sec and sec can be written as 1 upon cos. Similarly, tan and cot, their product is 1. Tan is equal to 1 upon cot and cot is equal to 1 upon tan. These are two quotient relations. Quotient relations means when we will divide two trigonometric ratio and we will get another. As we will divide sine and cos, sine upon sine theta upon cos theta is equal to tan theta. Similarly, cos theta upon sine theta is equal to cot theta. tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. अगर tan sine upon cos है तो cot cos upon sine है. आगे करते हैं. Now the next main thing which we have to learn is trigonometric identities. First of all, you all must aware about what are called identities and what are called equations. Equations are only true for some specific values, but identities are true for all values, right? Identities are also equations, but these are special equations which are true for all the variables involved. For example, कोई भी एंगल ले लें तो हर एक एंगल के लिए ये क्या हो जाती हैं, ट्रू हो जाती हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ पे ना वेरिएबल आना चाहिए. एनी डिफाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, एनी डिफाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन इट, राइट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल क्या है, थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा. अब थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. आप इसकी जगह पे कोई भी एंगल लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल लेंगे, ये सबके लिए क्या है, ट्रू है. जैसे अगर आप अब फिल करते हैं यहाँ पे, आप फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज किया हो, मान लो मैंने थीटा 30 ले लिया, तो मेरे पास ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, दिस इज अगेन 1/2 का स्क्वायर. cos 30 is √3/2 का स्क्वायर.
राइट, √3/2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4. देयर LCM विल बी 4, 1 + 3. आंसर विल बी 4/4 इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे 30 की जगह पे कोई भी एंगल ले लें. अब 0 डिग्री ले लें. साइन 0 इज़ 0 एंड कॉस 0 इज़ 1. 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 + 1 इज़ 1 इज इक्वल टू 1. 90 ले लें. कोई भी एंगल ले लें. दिस आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ डिफाइंड, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ this. From this one identity we can also find out the value of sin square theta. Sin square theta can be written as 1 - cos square theta and cos square theta आप sin square theta को इधर ट्रांसपोज कर दें. cos square theta की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 - sin square theta. Similarly the next one is secant square theta - tan square theta is equal to 1. इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? secant square theta - tan square theta is equal to 1. अब आप यहाँ से tan को ट्रांसपोज कर दें तो आपके पास आ जाएगा secant square theta इज इक्वल टू 1 + tan square theta. एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan? secant की तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि tan को ट्रांसपोज करना है. अब tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? tan स्क्वायर की आपको tan स्क्वायर इस साइड पे ट्रांसपोज कर दें और 1 को इधर ले आएँ, क्योंकि tan स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव है. तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. आप -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. अब ये माइनस का साइन आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का साइन दोनों इक्वेशन दोनों टर्म्स में ट्रांसपोज होगा. ये आ जाएगा -1 प्लस sec स्क्वायर थीटा. sec स्क्वायर थीटा पहले आ जाएगा -1. तो इस तरह से लिखना इजी रहता है. sec स्क्वायर थीटा -1, तो ये आपने याद रखना है. sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. सेम इज कोसिकेंट स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. cosec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 + cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर थीटा -1, राइट. याद कैसे रखना है? याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है. साइन और कॉज में रिलेशन होता है, सेक और टैन में होता है, कोसेक और कॉट में होता है. ये दोनों सीसी वाले हैं, कोसेक और कॉट, राइट. और ये सेक, ये कोसेक है, ये सेक है. यहाँ पे कोसेक पहले आता है, यहाँ पे सेक पहले आता है. यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉट. थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. साइन और कॉज के बीच में प्लस आता है, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आता है. तो इन आइडेंटिटीज़ को आप लर्न कर लें ताकि आपको जब आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, let's start with first question. Express the trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं सब में आपस में रिलेशन होता है. सारी एक राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस को डिवाइड आपस में करके बनती हैं. ये आपको भी पता है. तो किसी को भी किसी की टर्म में लिखा जा सकता है. दैट इज़ वेरी इजी. हमें लिखना है साइन, सेक और टैन तीनों को कॉट की टर्म्स में, राइट. टर्म्स में लिखने का मतलब होता है आप साइन की एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसमें सिर्फ कॉट हो और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ना हो. सिमिलरली सेक की निकालेंगे, सिमिलरली टैन की निकालेंगे, राइट. तो चलिए सबसे पहले साइन से स्टार्ट कर लेते हैं. सॉल्यूशन इज साइन ए. अब आप इजीएस्ट वे ढूंढें कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है. साइन कैन बी रिटन एज 1 / कोसेक ए. और आपने जो आइडेंटिटीज़ अभी पढ़ी हैं उसमें आपके पास कोसेक और कॉट में रिलेशन होता है. कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो कोसेक स्क्वायर ए है दैट इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए. ए स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें, आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू √1 + कॉट स्क्वायर ए. तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर हट जाएगा ना, स्क्वायर उधर ट्रांसपोज हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास कोसेक की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट हो जाएगी √1 + कॉट स्क्वायर ए. और आप ये सारा वर्क शो करेंगे रफ में. रफ में इन द सेंस इसके साइड पे, नॉट रफ. इट इज़ नॉट अ रफ वर्क, राइट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी की वजह से तो हम इसको चेंज कर पाए हैं. एज वी नो लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो
गॉट इट? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. सीकेंट को चेंज करेंगे कॉट में. सीकेंट को चेंज करना है कॉट में तो कैसे करेंगे? अब देखिए, आप सीकेंट कैन बी चेंज्ड इनटू tan and tan can be changed into cot. Let's do the next one. Secant A. As we know, secant square A minus tan square A is equal to 1 होता है, राइट? यहाँ से आप tan square A की वैल्यू निकाल लें. आपके पास नहीं, आप पहले secant की निकाल लें इन टर्म्स ऑफ tan. तो ये आपके पास आ जाएगी secant A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A का रूट, और जो tan होता है tan थीटा या tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A होता है. तो आप यहाँ पे tan की जगह पे cot लिखते हैं. सबसे पहले तो आप लिखें एज secant A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, राइट? पुट एज tan A is equal to 1 upon cot A. तो this can be written as 1 plus 1 upon cot square A. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि ये बिल्कुल ही सेपरेट है. यहाँ पे आपके पास LCM क्या आ जाएगा? cot square A ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा cot square A प्लस 1. यहाँ ऊपर तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों इंडिविजुअल स्क्वायर्स में हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. बट डिनोमिनेटर में आपके पास सिंगल टर्म है और इसका होल स्क्वायर है, तो आप इसको बाहर निकाल के लिख सकते हैं. एंड द आंसर विल बी cot square A प्लस 1 अपॉन cot A. नाउ द लास्ट वन, यू हैव टू राइट tan इन द टर्म्स ऑफ cot. ये तो आप खुद भी कर सकते हैं. tan इज एंड cot बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. अगर आपको tan को cot में चेंज करना है तो यू कैन सिंपली राइट tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cot A एंड दैट्स इट. होप इट इज़ क्लियर, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A इन द टर्म्स ऑफ सीकेंट A. आपको एंगल A की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सीकेंट A की टर्म्स में लिखना है. मतलब आपको साइन A, कॉज A, tan A, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा कोसेक A. सेक A तो हमें गिवन ही है. नेक्स्ट इज कॉट A. इन सबको आपको सेक A की टर्म्स में लिखना है. देखो, आप ऐसे ना स्टार्ट करें. फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैंने आपको थोड़ा प्रोसीजर बताना था इसलिए ऐसे स्टार्ट किया था. अब देखो, इसमें सबसे इजी स्टार्ट करना किसको है? सबसे डायरेक्ट हम किसको चेंज कर सकते हैं? कॉस को, क्योंकि कॉस और सेक में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक A. इट्स डन, राइट? अब हमारे पास नेक्स्ट है हाउ वी कैन चेंज. अब इसके बाद हम किसको चेंज कर सकते हैं? tan को, क्योंकि tan और किसमें रिलेशन होता है? सेक में डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती है. तो यहाँ पे आप लिखिए एज सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 है. यहाँ से आप tan A की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ सेक. tan को उधर ट्रांसपोज कर दें, 1 को इधर ले आए क्योंकि tan इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसे करना हमेशा इजी रहता है रादर देन कि आप माइनस का साइन लें, फिर कॉमन निकालें, फिर ट्रांसपोज करें, फिर गलती हो जाती है. तो बेटर कि आप नेगेटिव टर्म को ही उधर ले जाएं. तो ये आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर A. 1 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, और इधर आ जाएगा tan स्क्वायर A. ये स्क्वायर इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा. तो tan A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर द रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1. बस यही हमारा आंसर आएगा. इसको आपने सिंप्लीफाई नहीं करना है. होप इट इज़ क्लियर, राइट? अब आपके पास tan आ गया है तो cot लिखना और भी ज़्यादा इजी है. क्यों? tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. cot कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan A एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan को हमने पहले ही चेंज कर रखा है. दिस इज सीकेंट स्क्वायर A माइनस 1. होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर. अब हमारे पास बच गया साइन और कोसेक. इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. आप किसी एक को चेंज करें, साइन को चेंज करें, कोसेक आपके पास रेसिप्रोकल में बन जाएगा. अब साइन को चेंज करना है हमने सीकेंट में, तो कैसे करेंगे? साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ थ्रू आइडेंटिटी, और कॉस और सीकेंट का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. तो हम
कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एज वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालो। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट। अब कॉस स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए की वैल्यू चेंज कर दो, मतलब इसको सेकेंड में करना है तो डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ 1 माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये पूरे पे है अंडर रूट, ठीक है। अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। एलसीएम विल बी सीकेंड स्क्वायर ए और ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया। अब आप यहाँ पे देखो सीकेंड स्क्वायर ए अकेली टर्म है, ऊपर से तो स्क्वायर बाहर नहीं आ सकते क्योंकि 2 टर्म्स प्लस हो रही हैं, होल स्क्वायर होना चाहिए रूट से बाहर आने के लिए, पर डिनोमिनेटर तो बाहर आ सकता है ना। ये तो सिंगल टर्म है और इसका होल स्क्वायर भी बन रहा है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। होप इट इज़ क्लियर। अब आपने कोसेक को चेंज करना है। कोसेक को चेंज करने के लिए क्या करेंगे? कोसेक कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन ए, और साइन आपने पहले ही कर लिया है। जो भी आपके पास साइन की वैल्यू आई है आप उसका रेसिप्रोकल कर दें, ये आ जाएगा सेक ए अपॉन अंडर द रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ एंड फिफ्थ। सिक्स्थ हमारे पास पहले से ही थी, राइट। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हमने किसकी टर्म्स में लिखा है? सेक की टर्म्स में। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। In this video we will cover only first 3 questions and fourth question we will cover in separate video. चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट? वेरी इजी। आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, आपके पास सीकेंड स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए में आइडेंटिटी होती है और दोनों टर्म्स में से 9 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसमें से 9 कॉमन निकालें। क्या आएगा आपके पास? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए? व्हाट इज़ द आइडेंटिटी फॉर सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए? दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 9। विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू वॉट? आपके पास आइडेंटिटी सेक को tan में स्क्वायर में होती है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इन दोनों को +1 नहीं कर देना है, राइट। यहाँ पे स्क्वायर्स नहीं है इनके। दिस इज tan थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। अब एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम सबसे ईजीएस्ट वे होता है आप सारे क्वेश्चन को साइन कॉज में चेंज कर लें। साइन कॉज में चेंज करने से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है और उसको सॉल्व करना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है, राइट। तो सबसे पहले तो आप लिखो tan को साइन की टर्म्स में, सीकेंड को कॉज की टर्म्स में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। दोनों में एलसीएम ले लें, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, द एलसीएम विल बी cos theta and in numerator you will get cos theta plus sin theta plus 1. Here you have LCM will be sin theta, यहाँ पे आ जाएगा sin theta plus cos theta minus 1.
बेटा इन क्वेश्चंस को करते टाइम पे ना हर स्टेप पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है, यहाँ पे हम इसको ईजीएस्ट वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को इतना ज़्यादा खोल देंगे तो आपको हर बार ये क्वेश्चन समेटना मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आपने बस इसमें सोचना है, आपने इसमें अपने ब्रेन का यूज़ करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं कि क्वेश्चन ईजी हो जाए। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। थोड़ा सा भी बच्चा अगर ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है इसको आप पूरे को a कंसिडर कर लें और इसको आप b कंसिडर कर लें। दिस इज a प्लस बी a माइनस बी। एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी एंड a माइनस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। होप इट इज़ क्लियर। डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो गए ना, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएं, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हर स्टेप पे आपने सोचना है क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पे यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी और 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 हमारा कट जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ही सोचनी पड़ेंगी बेटा, है ना। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कट गया। अब न्यूमिनेटर में भी हमारे पास एक ही टर्म है और डिनोमिनेटर में भी एक ही टर्म है। साइन से साइन कट जाएगा और कॉस से कॉस कट जाएगा। बट 1 के कटने के बाद आपके पास यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कट जाएंगे आपस में क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर। लेट्स डू लास्ट थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। वी आर हैविंग सीकेंट a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले क्वेश्चन में भी कि आप इन क्वेश्चंस को करते टाइम सबसे पहले तो अपना सारा क्वेश्चन साइन कॉज में चेंज कर लें। साइन कॉज में चेंज करने से आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और कुछ स्टेप सही होने से भी आपको नंबर मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सीकेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए एंड टैन कैन बी रिटन एज साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। व्हाट इज द एलसीएम हेयर? कॉस ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। ना फिर से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी a माइनस बी की। एंड व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर a प्लस बी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसकी वैल्यू होती है? हमने ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी ना। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर उधर चला जाता है, कॉस उधर चला जाता है, दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, राइट। तो आपके पास यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होती है? कॉस स्क्वायर ए की। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। एक स्क्वायर से एक कॉस कट जाएगा, आंसर विल बी कॉस ए। डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे आपने जो भी आइडेंटिटी यूज़ करी है आप उसको मेंशन करेंगे एज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने किसकी वैल्यू निकाली? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। And the fourth part of this question is 1 plus tan square a divided by 1 plus cot square a is equal to what? 1 plus tan square a is equal to secant square a by using the identity, as we know that secant square a minus
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। अब tan स्क्वायर ए को तो ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज secant स्क्वायर ए। सिमिलरली वी हैव cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप cosec स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो दिस कैन बी रिटन एज cosec स्क्वायर ए। यहाँ तक करना तो ईजी था। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगेन हम इसको साइन और कॉस की टर्म्स में लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज, हमारे पास क्या बन गया है अब, सेक स्क्वायर ए प्लस और डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉज ए का होल स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते थे आप। दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऐसी फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वीडियो को अच्छे से करने के बाद ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जंप करें, क्योंकि अदरवाइज़ आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो you should have a good hold on all these questions, all these concepts, all these identities, all these relationships first, so that you can easily deal with question number 4 of exercise 8.3. Thank you.